یوحنا رسول کا انجیلی بیان ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا ہوا یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب میرے ساتھ نکالیے گا، اور اس کی 7ویں آج سے ہم اس کو 9ویں آیت تک پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 13ویں اور 14ویں آیات کو بھی تلاوت کریں گے۔ سبھی نے نکال لیا؟ یوحنا 16ویں باب کی پہلے 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اسی باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کو تلاوت کریں گے۔ جس سبھی نے نکال لیا تو 7ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں، تو لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ 13ویں اور 14ویں آیت کو بھی پڑھیں، 13ویں آیت کو پڑھیں۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق ان کی آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ 14ویں آیت کو سبھی مل کر پڑھیں۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ خدا کے پاک کلام کا بڑا سنایا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو۔ سبھی کہیں خدا کا شکر ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور عید پینٹیکوسٹ کا دن بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ عید پینٹیکوسٹ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، پھر نئے عہد نامہ میں ہم نے عید پینٹیکوسٹ کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے اپنے انبیاء کی معرفت، پیشگوئیاں کی، نبوت کی، روح القدس کے تعلق سے کہ آخری دنوں میں اپنی روح ہر ایک فرد بشر پر ڈالوں گا۔ اور پھر آج کے دن خدا نے اس وعدے کو پورا کر دیا جو اس نے اپنے انبیاء کرام کی معرفت پیشگوئیوں کے طرف سے کہا تھا۔ اور پھر یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں کہا، ان نبیوں کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ یہاں ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا ہے، تلاوت کیا ہے، تو یہاں پر بھی یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں فائدہ مند ہے؟ پرانے عہد نامہ میں خدا خود انبیاء کرام کی معرفت جو ہے وہ کلام کرتا رہا، پھر نئے عہد نامہ میں خدا کا کلمہ یعنی کہ کلام مجسم ہوا یسوع مسیح کی صورت میں، اور وہ ہمارے درمیان رہا اور وہ کلام کرتا رہا۔ اور اب جب کہ ہم خدا کے کلام کو کر رہے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں، تو یہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے، یہ پاک روح کی رہنمائی میں ہے۔ اور روح القدس کا اس دنیا میں آنے کا یا خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کہ روح القدس کا مقصد کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ روح القدس کا کام کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری خدمت کے اندر؟ کیوں؟ بہت سے لوگ
मखसूस चीज समझते हैं, यानी एक हाथ तक रूह कुद्दस को समझते हैं। और रूह कुद्दस जो है, पाक रूह जो है, वो तसलीस का तीसरा अकनून है। और याद रखिए, ना तो रूह कुद्दस किसी मखसूस वक़्त के लिए है, ना रूह कुद्दस जो है वो वक्ती तौर पे होता है, ना ही रूह कुद्दस जो है वो एक या दो लोगों के लिए होता है। रूह कुद्दस का मकसद, रूह कुद्दस का काम हर एक उस शख्स या उस इंसान की जिंदगी में काम करता है जो कोई रूह कुद्दस को वेलकम करता है। हालेलुया। जो कोई रूह कुद्दस को कबूल कर लेता है, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में दावत दे देता है, यकीनन रूह कुद्दस उसकी जिंदगी में, उसके कामों में, उसकी बातों में, उसकी खिदमत में, हत्ता कि उसके बदन के अंदर भी रूह कुद्दस काम करता रहता है। क्योंकि जो कोई रूह कुद्दस को हासिल कर लेता है, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में ले लेता है, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में पा लेता है, फिर रूह कुद्दस जो है वो उसके साथ साथ रहता है, उसकी बातों में, उसके कामों में, और फिर उसकी खिदमत में रूह कुद्दस बड़ा काम करता है। क्योंकि रूह कुद्दस के बारे में हम सीखेंगे। और बहुत से लोग रूह कुद्दस को किसी हद तक समझते हैं, चलो कि रूह कुद्दस यहाँ तक है, रूह कुद्दस यहाँ तक है, रूह कुद्दस खुदा है। हालेलुया। और जिस तरह खुदा की कोई हद नहीं, रूह कुद्दस की भी कोई हद नहीं, और ना ही रूह कुद्दस को महदूद समझे, ना ही रूह कुद्दस को किसी हद तक समझे। पुराने अहदनामा के अंदर भी रूह कुद्दस काम करता रहा है, लेकिन वक्ती तौर पे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को रूह कुद्दस इस्तेमाल करता रहा है। जैसा कि हम क़ज़ात की किताब को पढ़ें तो वहाँ पर 4 इश्खास हमें मिलते हैं क़ज़ात की किताब के अंदर। रूह कुद्दस ने उनकी जिंदगियों में बड़ा काम किया, इंतहाई काम किया। और पहला गुतनीएल था, जो कि यशवा के साथ जो कालब का दामाद था और अक्सा का शौहर था। क्योंकि कालब जो था वो यशवा के साथ खिदमत करता था। जब मुल्के कुनान में वो दाखिल हुए तो कालब का बहुत बड़ा किरदार है। और कालब की बेटी अक्सा जो थी, उसने शादी जो है वो इस गुतनीएल से की, और गुतनीएल ने जो है वो खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में, खुदा के रूह की कुव्वत से इस्राएल कौम को दुश्मनों से वक्ती तौर पे छुड़ाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिदाउन क़ज़ात की किताब के अंदर इस्राएल का बहुत बड़ा सूरमा हुआ है, और उसने भी वक्ती तौर पे पाक रूह की कुव्वत को हासिल किया, और उसने भी बनी इस्राएल कौम को कुछ वक्त के लिए दुश्मनों से रिहाई दी। और उसके बाद जो है क़ज़ात की किताब के अंदर एक और मशहूर मरूफ शख्स हमें नजर आता है, और वो है इफ्ता जलादी। और उसने भी पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से बनी इस्राएल कौम को कुछ वक्त के लिए दुश्मनों से छुटकारा दिया, दुश्मनों से रिहाई दी। और फिर जब हम 15वें और 16वें बाब के अंदर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सूरमा क़ज़ात की किताब के अंदर हमें नजर आता है, और वो है समसून। और उस पर भी खुदा का जो रूह था, उसको कुव्वत देता था, उसको ताकत देता था। और समसून ने भी खुदा के लोगों को खुदा के दुश्मनों से महफूज रखा। और ये थे पुराने अहदनामा के अंदर रूह कुद्दस के कारनामे, रूह कुद्दस के काम, रूह कुद्दस का मकसद कि वो वक्ती तौर पे किसी न किसी को लेता, गुतनीएल जैसे लोगों को लेता, जदाऊन जैसे लोगों को लेता, इफ्ता जलादी जैसे लोगों को लेता, समसून जैसे लोगों को लेता, और अपने लोगों को दुश्मनों से छुड़ाता। और रूह कुद्दस आगे जाकर देखते हैं जब गिनती की किताब के अंदर, तो गिनती की किताब के अंदर भी 70 बुजुर्गों ने जो है वो नबूवत की, और 70 बुजुर्गों ने नबूवत की, और उन पर भी रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। उन्होंने भी रूह कुद्दस की कुव्वत और कुदरत से नबूवत की। और उसके बाद पहले सामुएल के 10वें बाब में जब आते हैं तो इस्राएल का पहला बादशाह बनाम शाऊल, उसने
दुश्मनों से छुड़ाता है, और कभी रूह कुदस जो है वो अपने अंबिया इकराम से नबूवत और पेशनगोइयां करवाता है, और उन्हीं पेशनगोइयों में से योएल नबी ने भी पेशनगोई की, जिसको पतरस ने वाज़ह तौर पे ईमान की किताब में बयान करके दिखाया। और आज का दिन ईद पेंटिकोस्ट का दिन जो है वो हम उन्हीं पेशनगोइयों के सबब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी पेंटिकोस्ट के दिन को जो है वो मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? बहुत से लोगों को ईद पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में पता नहीं कि ईद पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है, ईद पेंटिकोस्ट क्यों मनाते हैं, और क्यों इसको जाहिर किया जाता है कि ईद पेंटिकोस्ट है। इश्तारों के जरिए, पम्पलेट्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए, खातमों के जरिए, कलीसियाओं के जरिए। लेकिन याद रखिए, ईद पेंटिकोस्ट रूह कुदस मेरी और आपकी बुनियाद है। हालेलुया। अगर रूह कुदस नाज़िल ना होता तो कलीसिया की बुनियाद कभी भी ना पड़ती। रूह कुदस कलीसिया की बुनियाद है, रूह कुदस चर्च की बुनियाद है। रूह कुदस जो है वो कलीसिया की, मेरी और आपकी बुनियाद है, नींव है। चर्च जो है वो रूह कुदस पर खड़ा है। रूह कुदस जो है वो चर्च में इंतहाई काम करता है। रूह कुदस चर्च की बुनियाद है। रूह कुदस जो है वो चर्च को परवरिश देता हुआ नजर आता है। रूह कुदस जो है वो कलीसिया की मदद और रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। रूह कुदस जो है वो कलीसिया की या ईमानदारों की मदद, रहनुमाई, कुव्वत और कुदरत बनता हुआ नजर आता है। हालेलुया। हम इसे पेंटिकोस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि रूह कुदस इस दिन नाज़िल हुआ, और रूह कुदस मेरी और आपकी बड़ा क्या है? बुनियाद है। ये भी कोई मामूली ईद नहीं, ये कोई मामूली दिन नहीं। ये ईद पेंटिकोस्ट का दिन जो है वो मेरे और आपके बुनियादी कामों में आता है। और ये रूह कुदस जो है वो मेरी और आपकी क्या है? बड़ा बुनियाद है। रूह कुदस कलीसिया की बुनियाद है। रूह कुदस चर्च की बुनियाद है, जब नींव है, और रूह कुदस हम में काम कर रहा है। हालेलुया। अगर कलीसिया कायम है तो रूह कुदस के वसीला से, अगर कलीसिया कायम रहेगी तो रूह कुदस की रहनुमाई में। अगर रूह कुदस ना आता, रूह कुदस ना होता तो यकीनन मेरा और आपका जो है वो काम करना कभी पाया तकमील तक ना पहुंचता, यानी खिदमत करना कभी पाया तकमील तक ना पहुंचता। पुराने अहद के अंदर भी खुदा अपने लोगों की रूह कुदस के वसीला से जो है वो मदद करता रहा, रहनुमाई करता रहा, और फिर लिखाता रहा। लिखाने में भी, तहरीर करने में भी पाक रूह मदद करता रहा। और रूह कुदस जो है वो मेरी और आपकी बुनियाद है। रूह कुदस मेरी और आपकी नींव है। अगर रूह कुदस नाज़िल ना होता तो शायद ही हम कभी मसीही ना कहलाते, कभी हमें मदद ना मिलती, कभी जो है वो हमें कुव्वत और ताकत ना मिलती, और कभी हम अंजील को ना सुन पाते, कभी ना अमल कर पाते, और ना ही फिर कबूल करने के बाद दूसरों तक पहुंचा सकते। और आज भी, अभी इसी वक्त भी, अगर मैं आपके सामने खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये किसकी मदद है? बताइएगा। अगर मैं खुदा का कलाम बयान कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये किसकी मदद है? किसकी मदद है? रूह कुदस की। किसकी मदद है? और रूह कुदस है क्या? रूह कुदस खुदा है, इसलिए खुदा हमारी मदद कर रहा है। रूह कुदस के वसीला से हमारी मदद कर रहा है, हमें जोर दे रहा है, हमें कुव्वत दे रहा है, हमें ताकत दे रहा है, हमारी कमजोरियों को शाज़ोरी अता कर देता है। रूह कुदस में पावर है, रूह कुदस में ऐसी ताकत है, रूह कुदस के पास इतनी मदद और रहनुमाई है कि हम कमजोरों को भी जोर अता कर देता है। हालेलुया। बस लोग रूहानी तौर पे कमजोर होते हैं, और उनको ताकत कौन देता है? रूह कुदस। कौन ताकत देता है? और कब ताकत देता है? कब ताकत देता है? जब हम यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, जब यीशु मसीह के कलाम को सुनकर कबूल करते हैं, जब खुदा के कलाम को सुनने के बाद, कबूल करने के बाद अमल में लाते हैं, तो सुनने में भी पाक रूह हमारी मदद करता है, कबूल करने में भी पाक रूह हमारी मदद करता है, फिर कलाम को अमल में लाने के लिए भी पाक रूह हमारी मदद करता है। क्योंकि पाक रूह हमारे लिए बतौर मददगार भेजा गया है। पाक रूह कुदस जो है वो हमारे लिए बतौर
लिए हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, और फिर ये हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करता रहे। और इसके काम क्या है? इसके काम हमने देखा है, रूह कुदस के काम या रूह कुदस का मकसद जो है वो इस दुनिया के अंदर हमारे दरमियान में भेजा जाना, इसके मकसद क्या है, इसके काम क्या है? पहली बात तो 7वीं 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और रूह कुदस के कामों में से उसका एक काम कौन सा है? यहाँ 8वीं आयत के मुताबिक रूह कुदस का काम या रूह कुदस का मकसद क्या है? और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में क्या करेगा? कसूरवार ठहराएगा, यानी कि उन लोगों को मुजरिम ठहराएगा, उन लोगों को कसूरवार ठहराएगा जो खुदा के कलाम को सुनते नहीं, जो खुदा के कलाम को सुनकर कबूल नहीं करते, जो खुदा के कलाम को अमल में नहीं लाते, और उनको क्या ठहराएगा? कसूरवार ठहराएगा, उनको मुजरिम ठहराएगा। मैंने पहले कहा कि रूह कुदस को किसी हद तक ना समझे कि रूह कुदस का एक ही काम है, रूह कुदस का एक ही मकसद है, रूह कुदस की एक ही नेमत है। रूह कुदस सिर्फ यहाँ तक और वहाँ तक नहीं, यानी कि रूह कुदस खुदा है, और जिस तरह खुदा की कोई हद नहीं, इसी तरह रूह कुदस की भी कोई हद हालेलुया, रूह कुदस की पाक रूह की भी कोई हद नहीं है। खुदा भी लामहदूद है और रूह कुदस भी लामहदूद है, और इसका काम है कि जो ईमान नहीं लाते उनको मुजरिम ठहराए। 9वीं आयत के मुताबिक गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। रूह कुदस के मकासद में से, इसके कामों में से एक काम ये भी है कि रूह कुदस मुजरिम ठहराता है। रूह कुदस ऐसे लोगों को मुजरिम ठहराता है जो कलाम को सुनकर कबूल नहीं करते, इसकी मदद को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, रूह कुदस की कुव्वत को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते, रूह कुदस को अपने अंदर दावत नहीं देते, रूह कुदस को अपने अंदर आने नहीं देते। उन लोगों को क्या ठहराएगा? मुजरिम ठहराएगा। क्या ठहराएगा? मुजरिम ठहराएगा। और मुजरिम की सजा बड़ा क्या होती है? मौत। क्या होती है? मौत। और फिर इस तरह से लिखा है 13वीं और 14वीं आयत के मुताबिक इसके अगले मुकासद क्या है, रूह कुदस के अगले काम क्या है? लेकिन जब वो यदि रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। किन लोगों को राह दिखाएगा? वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, क्योंकि कलाम सच्चाई है। कलाम और रूह कुदस हमें सच्चाई की राह दिखाएगा, सच्चे कलाम की राह दिखाएगा, हकीकी कलाम की राह दिखाएगा। कलाम तो यूं दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन रूह कुदस कौन से कलाम को हमें, कौन सी सच्चाई को हमें दिखाएगा, सिखाएगा? कौन सी? एक हकीकी अंजील को, एक सच्चे कलाम को जो हम सुन रहे हैं, इसको रूह कुदस सीखने में, इसको सिखाने में, इसको पढ़ने में, इसको पढ़ाने में हमारी क्या करेगा? मदद करेगा, हमें सिखाएगा, हमें राह दिखाएगा, और कहेगा कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की क्या करेगा? खबरें। रूह कुदस यहाँ तक नहीं, रूह कुदस था, रूह कुदस है, और रूह कुदस हालेलुया, रूह कुदस रहेगा। इसलिए लिखा है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुराने अहदनामा के अंदर भी रूह कुदस का जिक्र है, और हाल में भी रूह कुदस का जिक्र है और हो रहा है, और आने वाले वक्त में भी रूह कुदस आने वाली बातों के बारे में खबरें देगा। क्या करेगा भाई? खबरें देगा। खबरें देगा। इसका मतलब है कि रूह कुदस एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, जो आने वाले वक्त के लिए भी हमें आगाह करता है, हमें आगाही देता है, हमें इन्फॉर्म करता है कि आने वाले काल में क्या होगा। रूह कुदस गुजरे काल के बारे में भी बताता है कि क्या हो चुका है, और आज बताता है कि क्या हो रहा है, और आने वाले काल में भी बताएगा कि कल क्या होने वाला है। इसलिए रूह कुदस लामहदूद है। रूह कुदस को किसी हद तक मत समझे। और आगे 14वीं आयत के अंदर भी यही कुछ लिखा है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, वो मेरा खबरें क्यों देगा। रूह कुदस तो खबर
को याद रखें कि वो मुजरम ठहराएगा, रूह कुद्दस मुजरम ठहराएगा, फिर आने वाले वक्त की खबरें देगा। और तीसरी बात हमने क्या पढ़ी है, रूह कुद्दस क्या करेगा? रूह कुद्दस यीशु का जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया। और कर भी रहा है, जलाल जाहिर करेगा। और आगे फिर लिखा है कि आने वाले वक्त की क्या देगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। क्या करेगा भाई? सिर्फ खबर नहीं देगा, सिर्फ एक खबर नहीं देगा, खबरें देगा। क्या करेगा? बहुत सी खबरें देगा और दे रहा है। हालेलुया। कि कल क्या होगा आने वाले काल में। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, अगर हम अनाजील को पढ़ने वाले हैं, अगर हम नई जब इब्तिदाई कलीसिया की हिस्ट्री माल की किताब को पढ़ने वाले हैं, अगर हम खुतूत को पढ़ने वाले हैं, अगर हम काशफ की किताब को पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी खबरें हमें किससे मिलती हैं? बाइबल मुकद्दस में से। और हमारी मदद कौन कर रहा है? पाक रूह कुद्दस। कौन कर रहा है? रूह कुद्दस हमें सिखा रहा है, रूह कुद्दस हमें बता रहा है कल क्या होगा और कल क्या होगा। ये सब कुछ आप बाइबल मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं। और खबरें कौन दे रहा है? रूह कुद्दस। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? क्योंकि जिस तरह खुदा पर हमारा ईमान है, यीशु मसीह पर हमारा ईमान है, इसी तरह रूह कुद्दस पर भी हमारा ईमान है। और इस ईमान से हमें कोई भी झुठला नहीं सकता, हमें कोई भी फेर नहीं सकता, क्योंकि रूह कुद्दस पर हमारी क्या है? बुनियाद। रूह कुद्दस पर हमारी क्या है? बुनियाद। अगर एक इमारत की बुनियाद को उखाड़ दिया जाए, अगर एक इमारत की बुनियाद को उखाड़ कर रख दिया जाए, तोड़ फोड़ कर दी जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या वो इमारत रहेगी? नहीं। इमारत किस पर खड़ी होती है? बताइएगा। इमारत किस पर, बिल्डिंग किस पर खड़ी होती है? बुनियाद पर। चर्च, कलीसिया, मैं और आप, हम किस पर खड़े हैं? बुनियाद पर। और मेरी और आपकी बुनियाद क्या है? हालेलुया। मेरी और आपकी बुनियाद क्या है? चर्च, कलीसिया हमेशा रूह कुद्दस पर खड़ी है। हालेलुया। रूह कुद्दस पर खड़ी है। और ईद पेंटिकोस्ट जो है वो हमारी बुनियाद है। नए अहदनामा की जो पेंटिकोस्ट है, ईद पेंटिकोस्ट है, वो हमारी बुनियाद है। और हम रूह कुद्दस पाक रूह पर खड़े हैं। और पाक रूह हर रोज हमारी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। पाक रूह कलाम को सुनने में मदद करता है, पाक रूह कबूल करने में मदद करता है, पाक रूह अमल करने में भी हमारी मदद है। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए मेरा जाना फायदेमंद होगा। अगर मैं चाहता हूँ तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। दूसरे मददगार से मुराद क्या है? कौन बता सकता है दूसरे मददगार से मुराद क्या है? और इसका मतलब है कि वो पहला मददगार भी था। अगर पहला मददगार था तो इसलिए वो कहता है ना कि दूसरा मददगार। पहला मददगार आप हवाला नोट कर सकते हैं। पहला मददगार जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसका हवाला आप नोट कर सकते हैं। यूहन्ना रसूल का जो दूसरा आम खत है और उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है। यूहन्ना रसूल का पहला आम खत उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक लिखा है कि पहला मददगार कौन था? यीशु। कौन था? और अब भी है। पहले वो जिस्मानी तौर पे, पहले वो तो कलमा तजस्सुम होकर हमारे दरमियान रहा, कलमा या कलाम तजस्सुम हुआ, हमारे दरमियान रहा, हमारे सामने आ रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के हिकमत देखा। इसलिए दूसरा मददगार, पहला मददगार कौन है? यीशु। पहला मददगार कौन है? और अब दूसरा मददगार कौन है? रूह कुद्दस। इसलिए वो कहता है कि मैं कौन सा मददगार भेजूंगा? दूसरा। इसका मतलब है यीशु अपनी तरफ इशारा करता है कि पहला मददगार मैं हूँ और मेरे जाने के बाद जिसको मैं भेजूंगा वो दूसरा मददगार रूह कुद्दस है। पहला यूहन्ना दूसरे बाब की पहली आयत के मुताबिक जो है वो पहला मददगार यीशु है और दूसरा मददगार रूह कुद्दस है। हालेलुया। दूसरा मददगार है। और हमें रूह कुद्दस मिलता कब है? कब मिलता है?
क्या बड़ी दुआएं करने से रूह कुदस मिलता है? जी, बड़े लोग उल्टी सीधी दुआएं करते रहते हैं कि रूह कुदस आजा, रूह कुदस मेरे दिल में समा जा, रूह कुदस तू ये खा जा, रूह कुदस तू वो खा जा, रूह कुदस तू ऐसा खा जा, वैसा खा जा। क्या रूह कुदस पर हम हुक्म चला सकते हैं? नहीं, रूह कुदस पर हम हुक्म नहीं चला सकते। याद रखिए रूह कुदस को कभी भी, रूह कुदस पर कभी भी जो है वो हुक्म ना चलाएं। रूह कुदस हमारे हुक्म का मोहताज नहीं है। कि मैंने पहले बताया कि रूह कुदस कौन है? खुदा। रूह कुदस कौन है? खुदा। और खुदा हमें हुक्म देता है, हम खुदा को हुक्म नहीं दे सकते। जिस तरह खुदा हमें हुक्म देता है हम उसको हुक्म नहीं दे सकते, इसी तरह रूह कुदस हमें हुक्म देता है, हम रूह कुदस को हुक्म नहीं दे सकते। याद रखिएगा, बहुत से लोग रोज का दुआएं करते हैं कि रूह कुदस भेज दे, रूह कुदस आजा, रूह कुदस ये कर दे, रूह कुदस वो कर दे। बस लोग गीतों के जरिए रूह कुदस को मांगते रहते हैं, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। जरा मेरे साथ निकालिए इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़े तो वो यहाँ पर क्या लिखा है कि रूह कुदस कब हमें मिल जाता है, रूह कुदस कब हमें समझ जाता है, रूह कुदस को कब हम अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं। और इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत को जरा पढ़े। रूह कुदस हमें मिलता कब है? कब मिलता है? क्या बड़ी दुआएं करने से, बड़े गीत गाने से, बड़ी कोशिशें करने से, बड़ी मेहनत करने से, बड़े सख्त काम करने की वजह से रूह कुदस मिल जाता है? रातों रात जागने से रूह कुदस मिल जाता है? रूह कुदस कब मिलता है? इसलिए पहला बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को मेरे साथ निकालें और मुबश्शिर इमरान साहब इसको पढ़ने में रहमत करेंगे। जी, रूह कुदस कब हमारी जिंदगी में आ जाता है? कब हमें रूह कुदस मिल जाता है? कब रूह कुदस की मोहर हम पर सादर हो जाती है, लग जाती है? इसको पहले बाप की 13वीं और 14वीं आयत को जरा पढ़े। क्या लिखा बशीर साहब? और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, तो पाक मोहदा रूह की मोहर लगी। इस आयत के मुताबिक हमें रूह कुदस कब मिल जाता है? जब खुदा के कलाम को सुनते हैं। कैथोलिक के पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब कलाम को सुनने में पाक रूह हमारी मदद करता है और हम खुदा कलाम को कबूल कर लेते हैं, तो फिर रूह कुदस हम पर क्या कर देता है? मोहर कर देता है। क्या कर देता है? मोहर कर देता है। और जिस चीज पर मोहर लग जाए वो चेंज नहीं हो सकती। जिस पेज पर, जिस सफे पर मोहर लग जाए वो मोहर कभी रेज नहीं होती। तो उन लोगों की गलतफहमी है कि हम बड़ी दुआएं करेंगे, बड़ी कोशिशें करेंगे, बड़े गीत गुण गाएंगे, बड़ी रूहानी तबीयत में रहेंगे तो फिर रूह कुदस नाज़िल होगा। ऐसी गलतफहमी को दिल से निकाल के मेहरबानी करके रूह कुदस, जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी इजाज़त कबूल कर लेते हैं, पाक रूह आपकी मदद करता है और आप पर पाक रूह की क्या लग जाती है? मोहर लग जाती है। मोहर लग जाती है। और मोहर जो है वो एक मलकियत को जाहिर करती है। मोहर जो है और वो किसी मलकियत के बारे में, किसी भी चीज पर जब मोहर लग जाती है तो वो उस बात का, उस काम का सबूत हमारे पास होता है। देखिए मोहरें कानूनी वादों में भी लगती है, जल्दी वादों में भी लगती है। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर कोई निकाह और वगैरह चीजें, किसी भी चीज पर जब मोहर लग जाती है तो वो काम क्या हो जाता है? पक्का। क्या हो जाता है? और फिर उस मोहर को रेस करना, उस मोहर को रिमूव करना, उस रेस को, उस मोहर को मिटाना, ये नामुमकिन हो जाता है। और याद रखिए, पाक रूह आपको सुनने में आपकी मदद करता है, कबूल करने में आपकी मदद करता है। जो ये आप कबूल कर लेते हैं तो पाक रूह की मोहर आप पर लग जाती है। अगर अभी भी समझ ना आए तो फिर बैठे कर सकते। पाक रूह आपको मदद दे, पाक रूह आपकी रहनुमाई करे, पाक रूह आपको कुव्वत दे ताकि आप रूह कुदस को समझे, रूह कुदस को जाने। इसीलिए तो पुराने नई जो इब्तिदाई कलीसिया थी उनमें लड़ाई झगड़े थे
हमारी विनाश का बयाना है, ताकि उसके जलाल की ताकि उसके जलाल की सताइश हो, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। यदि के निजात को हासिल करने के लिए पाखरू की मोहर हम पर लग चुकी है। और इसका मतलब ये है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं, खुदा की बादशाही के, क्योंकि हम पर क्या लग चुकी है? पाखरू की मोहर, पाखरू की मोहर लग चुकी है। और पाखरू की मोहर लगने से मुराद ये है कि हम खुदा के फरजंद बन चुके हैं। जितने ने कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। रूह कुद्दस कब हमें मिलता है? बताइए, आप सवाल है आपसे, कब मिलता है? जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। इसके पहले बात की 13 आयत के मुताबिक जब हमने खुदा के कलाम को सुना तो उसमें हमारी कोई मेहनत नहीं थी, हमारी कोई कोशिश नहीं थी। खुदा के कलाम को सुनने में मदद कौन कर रहा था? सभी बताइएगा, खुदा के कलाम को सुनने में मदद कौन कर रहा है? सभी बोले, मदद कौन कर रहा है? क्योंकि रूह कुद्दस बतौर मददगार, दूसरे मददगार के तौर पर भेजा गया है, नाज़िल हो चुका है। अब खुदा के कलाम को सुनने, सुनाने, सीखने, सिखाने के सारे अमल में मेरी और आपकी मदद कौन कर रहा है? रूह कुद्दस। कौन कर रहा है? रूह कुद्दस कर रहा है। और जब इसको कबूल करते हैं तो भी रूह कुद्दस हमारी मदद करता है तो हम कबूल करते हैं, वरना अपनी मर्जी से कबूल नहीं कर सकते। तो बाकी बात क्या रहेगी? बाकी कौन सी बात रहेगी? बाकी बात कौन सी रहेगी? कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी रूह कुद्दस नहीं है, इसमें रूह कुद्दस नहीं है, उसमें रूह कुद्दस नहीं है, वो रूह कुद्दस से खाली है, ये रूह कुद्दस से खाली है। जब हमने खुदा के कलाम को सुना, खुदा के पाक रूह ने हमारी मदद की और हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपने शख्स निजात का कबूल किया, नई पैदाइश को हासिल कर लिया, तो क्या मैंने और आपने अपनी मर्जी से ऐसा किया? इसमें मदद किसने की? नई पैदाइश को हासिल करने में मदद कौन करता है? बताइएगा। निजात हासिल करने के लिए मदद कौन करता है? खुदा का फरजंद बनने में मदद कौन करता है? खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए मदद कौन करता है? मोहर के तौर पे मदद करता है, मोहर के तौर पर मुझ पर और आप पर। जब से हमने खुदा के कलाम को सुना, रूह कुद्दस की क्या हो चुकी है? मोहर हो चुकी है और हम रूह कुद्दस से भरे हुए हैं। हालेलुया। जो निजात याफ्ता है वो अपने आप को रूह कुद्दस से खाली ना समझे, ये उसकी बेइत्तेकादी है, कम इत्तेकादी है, और वो अपने आप को रूह कुद्दस से भरा समझे। हालेलुया, हालेलुया। और रूह कुद्दस ही हमारी बुनियाद है, रूह कुद्दस हमारी बुनियाद है, कलीसिया की बुनियाद है, चर्च की बुनियाद है, ईमानदारों की बुनियाद है। लेकिन हमने इसे समझा ही नहीं, हमने रूह कुद्दस को समझा ही नहीं और ना ही समझ रहे हैं। और ये नई बात नहीं, ये इब्तिदाई कलीसिया से चला हो रहा है कि जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ ईद पेंटिकोस्त के दिन 120 लोगों की जुमात पर, तो ज़ाहिरी निशान क्या था? कोई बता सकता है? ज़ाहिरी निशान क्या था? ज़ाहिरी निशान क्या था जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ? तो ज़ाहिरी निशान क्या था? भाई गैर ज़ुबानें। ज़ाहिरी निशान क्या था? ज़ाहिरी निशान क्या था? भाई गैर ज़ुबानें थी आखिरी निशान उनके लिए। लेकिन गैर ज़ुबान बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि गैर ज़ुबान ईमानदारों के लिए नहीं, बल्कि किनके लिए? किनके लिए है? गैर ईमानदारों के लिए, बेईमानों के लिए, जो कि रूह कुद्दस को नहीं मानते, रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में जो है वो आता हुआ नहीं कबूल करते, उनके लिए जो भी तक रूह कुद्दस पर ईमान नहीं लाए कि रूह कुद्दस के वसीला से मैंने तौबा की है, रूह कुद्दस के वसीला से मैंने निजात पाई है, रूह कुद्दस के वसीला से मैं मसीह जिंदगी बसर कर रहा हूँ, और रूह कुद्दस के वसीला ही से जब यीशु आएगा तो मैं हवा पर उड़कर उसका इस्तेमाल है। ये सारा काम किसका है? मैंने पहले कहा कि आज हम सीख रहे हैं रूह कुद्दस के काम या रूह कुद्दस के मकासद, कि रूह कुद्दस को आने का और रूह कुद्दस के आने का मकसद क्या है, रूह कुद्दस के आने के काम क्या है, कि रूह कुद्दस कब तक हमारी मदद करता रहता है? कब तक? कलाम को सुनने से लेकर कबूल करने तक, अमल में लाने तक, फिर मसीह जिंदगी बसर करने तक, जब तक यीशु दोबारा नहीं आ जाता, रूह कुद्दस हमारी मदद करता रहेगा। हालेलुया। रूह कुद्दस का काम ये है, रूह कुद्दस का मकसद ये है। रूह कुद्दस का मकसद सिर्फ एक दो बातें नहीं, एक दो काम नहीं, एक गुनहगार जब यीशु को कबूल कर लेता है तो उस गुनहगार के कबूल करने में मदद कौन करता है?
मेरी मदद भी रूह कुद्दस ने की। जब मैंने कलाम को कबूल किया तो खुदा के कलाम को कबूल करने में भी रूह कुद्दस ने मेरी मदद की। अब जब कि मैं मसीह जिंदगी बसर कर रहा हूँ तो मसीह जिंदगी बसर करने में भी मेरी मदद रूह कुद्दस कर रहा है। हालेलुया। और मेरा ईमान है, मुझे उम्मीद है कि रूह कुद्दस जब तक यीशु ना आएगा मेरी मदद करता रहेगा। हालेलुया। और मैं रूह कुद्दस के इस्तेमाल से हमारे यीशु मसीह का इस्तेमाल करूंगा और फिर हमेशा उसके साथ रहूंगा। ये रूह कुद्दस का काम है। रूह कुद्दस के आने का मकसद है, नज़ूल का मकसद है, नाज़ होने का मकसद है। लेकिन रूह कुद्दस खुदा है, खुदा भी था, है और रहेगा। इस तरह रूह कुद्दस भी था, है और रहेगा। और उसे वेलकम करते रहिए बड़ी आजी के साथ, हलीमी के साथ, फरोजनी के साथ, नबी आजी कसाई के साथ रूह कुद्दस से मदद मांगते रहे, रूह कुद्दस से हासिल करते रहे। क्या बाबू मेरी मदद कर, मुझे कलाम को सीखने में मेरी मदद कर, मुझे खुदा के कलाम को कबूल करने में मेरी मदद कर, मुझे अमल में लाने में मेरी मदद कर। क्योंकि रूह कुद्दस बतौर मददगार के लिए भेजा गया है। हालेलुया। बतौर और रूह कुद्दस पहला मददगार है या दूसरा? पहला मददगार कौन था बताइए? पहला मददगार कौन था? पहला यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक मेरा और आपका पहला मददगार कौन है? यीशु। और दूसरा मददगार कौन है? कौन है? रूह कुद्दस है। रूह कुद्दस है। जैसा कि पुराने एहतरामा में वक्ती तौर पे वो अपने लोगों को रूह कुद्दस गिफ्ट देता रहा, तोहफे देता रहा, नेमतें देता रहा, इसी तरह नए एहतरामा में भी ये काम शुरू हो गया। वो ज़ाहिर निशान था गैर ज़ुबानी, ताकि लोग जाने कि वाकई रूह कुद्दस नाज़िल हो गया है। वो एक ज़ाहिर निशान था किसके लिए? बेईमानों के लिए। बाइबल मुक़द्दस बयान कर रही है, बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है, मैं नहीं करता। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है। रोमियो 12वां बाब और उसकी 6वीं और 8वीं आयत को मुबश्शिर इब्राहिम साहब पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पुरुष रसूल का खत उसका 6वां और उसका 12वां बाब उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं इन आयत को मुबश्शिर साहब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है जी? रोमियो 12वें बाब की 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत। अगर हो सके तो माइक मुबश्शिर साहब को भी दे दे मेहरबानी कर, ताकि आसानी पैदा हो जाए। रोमियो 12वां बाब उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत में क्या रकम है? ये रूह कुद्दस का टॉपिक है, ये आम टॉपिक नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मेहरबानी करके जरा गौर से सुनिएगा। रूह कुद्दस हमारी बुनियाद है, कलीसिया की नींव है। जरा मेहरबानी करके जरा गौर से सुनिएगा जी। लिखा है और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली है वो ईमान के अंदाजा के नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो, मगर जिसको खिदमत मिली हो खिदमत में लगा रहे। वो खिदमत में क्या लिखा है? खिदमत करे या खिदमत में लगा रहे? ये कंटिन्यूस है। ये लगा रहने से मुराद क्या है? इसे कंटिन्यू रखना है, इसे जारी रखना है। वो खिदमत करता रहे, वो खिदमत का बना करे, खिदमत को छोड़ कर ना बैठ जाए, बल्कि वो क्या करता रहे? खिदमत करता रहे। इस तरह से जैसा एक पंखा चल रहा है मुसलसल से, एक चक्कर चल रहा है मुसलसल से, एक बहुत बड़ा काम खुदा ने जो खिदमत का है मुझे और आपको दे रखा है। और ये क्या लिखा है कि वो काम क्या करते रहे, क्या करते? जारी रखें, कंटिन्यू रखें। आगे क्या लिखा मुझे साहब? अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में रात बांटने वाला, सखावत से बांटे। पेशवा सरगर्मी से किस तरह से पेशवाई करे? सरगर्मी से। किस तरह से करे? सुस्ती के साथ सोकर, हाँ जी, सोकर सुस्ती से घुटनों में बल पड़ा हो, कभी लाकर से खुदा ना करे, कभी लाकर से पीड़, कभी कोवटे से पीड़, कभी तो से पीड़। और वो दर्दें तो होंगी जब वो ना इंसाफी करेगा खुदा के कलाम के साथ, खुदा की मुनादी करने में, इंजील की मुनादी करने में वो अपना रौब अच्छे तरीके से अदा नहीं करेगा तो पीड़ा तो ठग गया। अब लिखा है ये खुदा का काम सुस्ती में नहीं करने वाला, लापरवाही में नहीं करने
ضرورت ہے. ہاں جی آگے کیا لکھا ہے مشیر صاحب؟ رحم کرنے والا رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے. خوشی کے ساتھ رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ. کس طرح؟ جی مشیر صاحب آگے. ہاں جی دیکھیے گا 8ویں آیت پہ کیا لکھا ہے. جی ہاں جی 8ویں. تھینک یو مشیر صاحب. آگے 7 نکالے پہلے کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 4تھی آیت سے ذرا پڑھیں. اس کی 4تھی آیت سے ذرا پڑھیں. میں نے پہلے بتایا ہے کہ روح القدس محدود نہیں. روح القدس محدود یعنی کہ یہاں تک نہیں, صرف یہیں تک روح القدس نہیں. جس طرح خدا یہیں تک نہیں یا یہاں تک نہیں, اس طرح روح القدس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہ نامحدود ہے. ہاں جی پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 4تھی آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. 4تھی آیت سے. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, مگر روح ایک ہی ہے. مگر روح ایک ہی ہے. آگے اور خدمتیں بھی طرح طرح اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں, مگر خداوند ایک ہی ہے. مگر خداوند ایک ہی ہے. اور تاثیریں بھی طرح طرح اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں, مگر خدا ایک ہی ہے. مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے. سنیے گا روح کتنی ہے, خداوند کتنے ہیں, خدا کتنے ہیں, ایک. ذرا غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا. روح ایک ہے, خدا ایک ہے, خداوند بھی ایک ہے. روح ایک ہے. نعمتیں کتنی ہیں, طرح طرح کی. نعمتیں کتنی ہیں, آگے سنیے گا کیا لکھا ہے. جی بچوں صاحب. روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام. سنیے گا اس میں روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے, اور دوسرے کو اسی روح کی اور دوسرے کو کسی دوسری روح سے. کیا لکھا ہے یہاں پر, کیا لکھا ہے دوسری روح سے. کوئی اور دوسری روح آئے اور دوسری نعمت دے جائے, دوسرا مشورہ دے جائے, دوسرا کلام دے جائے, دوسری بات دے جائے, لیکن کہ اسی روح سے. کون سی روح سے؟ خدا ایک ہے, خداوند ایک ہے, روح بھی ایک ہے. روح کے کام کیا ہے سنیے گا ذرا. روح کے ایک ہی روح سے سب نعمتیں نکلتی ہیں, ایک ہی روح ساری نعمتیں دیتا ہے. اور آگے کیا لکھا مشہور صاحب؟ اسی روح کی مرضی کے موافق, اسی روح کی مرضی کے موافق الوہیت کا کلام, الوہیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے شفا کی نعمت, ایمان, اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے, کسی کو اسی روح سے ایک شفا دینے کی نعمت, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو معجزوں کی قدرت سے نعمت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ, کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے. لیکن یہ سب تصویریں کتنی روحیں کر رہی ہیں بتائیے, کتنی روحیں ہیں, خدا کتنے ہیں, خداوند کتنے ہیں, روح کتنی ہیں, ایک. اسی روح میں سے ساری نعمتیں, ایک ہی روح جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے, دیتا ہے. آگے مشہور صاحب. اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے, ٹھیک ہے مشہور صاحب, جس کو چاہتا ہے وہ نعمت بانٹتا ہے. پھر لڑائی کیوں نہیں کرتی, کس بات کا جھگڑا, کس بات میں تفرقہ, کس بات میں لڑائی. ہمیں روح القدس کے اس فیصلہ سے کبھی بھی لڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک ہی پاک روح ہے, ایک ہی روح القدس ہے, اور وہ جس کو چاہتا ہے, جو چاہتا ہے نعمتیں بانٹتا ہے. کسی کو ایک نعمت, کسی کو 2 نعمتیں, کسی کو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی نعمتیں ہوں. لیکن اس میں میں اور آپ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ہمارا لڑنا جائز نہیں ہے. کرنتھس کی کلیسیا میں بھی یہی باتیں پائی جاتی تھی. وہ آپس میں لڑتے تھے, آپس میں جھگڑتے تھے. کس بات پر جھگڑتے تھے, کیوں, کس بات پر جھگڑتے تھے, وہ کیوں جھگڑتے تھے, وہ کیوں لڑتے تھے بتائیے گا. کیوں پولس رسول کو یہ باتیں لکھنی پڑی, کیوں؟ وہ آپس میں لڑتے تھے, آپس میں جھگڑتے تھے, آپس میں ان کے تفرقے تھے. وہ 4 گروپوں میں پڑ چکے تھے. اور پھر پولس رسول نے کہا کہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو, کیونکہ خدا بھی ایک ہے, خداوند بھی ایک ہے, اور روح القدس بھی
एक है रूह कुदस जिसको चाहता है, जो चाहता है नेमतें बांटता है। तुम क्यों आपस में लड़ते मरते हो? तुम ऐसा करना रवा नहीं है, नहीं है। क्यों लड़ते थे? क्यों? सबसे पहले ईद पेंटिकोस्ट के दिन जो जारी निशान था वो बोला गया था। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अकेले तो हमें याद ना हो फिर खुदा आपकी रहनुमाई करे, पाक आपकी रहनुमाई करे ताकि आपको याद हो जाए। तो गैर जुबान की वजह से लोग लड़ते थे। जिनको गैर जुबान नहीं आती थी वो दूसरे को नीच समझता था। जिसके पास शिफा की नेमत नहीं थी वो भी दूसरे को नीचा समझता था। जिसके पास मौज़ों की नेमत थी वो भी दूसरों को नीचा समझता था। जिसके पास हिकमत का कलाम था वो भी दूसरों को नीचा समझता था। जिसके पास अलमियत का कलाम था वो भी दूसरों को नीचा समझता था। जिसके पास नबूवत का कलाम था वो भी दूसरों को नीचा समझता था। आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो फटते थे। 4 ग्रुपों में वो पढ़ चुके थे। और पौलुस ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करना, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूह कुदस की अपनी मर्जी है। मैंने पहले बताया कि हम रूह कुदस को अपनी मर्जी ना बताएं, बल्कि रूह कुदस अपनी मर्जी से हमें जो चाहे जब चाहे नेमतें दे सकता है। हम उसकी दी हुई नेमतों के लिए शुक्र तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते। आज भी इस दुनिया में यही कुछ हो रहा है। जिसके पास गैर जुबान है वो दूसरों को नहीं समझता है। जिसके पास शिफा की नेमत है वो दूसरों को नहीं समझता है। जिसके पास मौज़ों की नेमत है वो दूसरों को नहीं समझता है। जिसके पास हिकमत अलमियत या नबूवत का कलाम है वो दूसरों को नहीं समझता है। जिसके पास कोई भी नेमत है ना, 1 या 2 या 3, वो दूसरों को क्या समझता है? नीच। वो समझता है बस मेरे पास ही रूह कुदस है, बस मैं ही रूह कुदस का खुदा माफ करे मालिक हूँ। रूह कुदस मेरे कहने पर ही काम करता है, दूसरे के कहने पर काम। लेकिन याद रखिए, रूह कुदस हमारे कहने से काम नहीं करता, बल्कि हम रूह कुदस के कहने से काम कर रहे हैं। हालेलुया। रूह कुदस का यही काम है, रूह कुदस का। और रूह कुदस कब से हमारी मदद करता है? जरा बताइएगा, कब से? इसमें पहले बाप की 13वीं आयत के मुताबिक रूह कुदस कब से हमारी मदद करता है? कब से? जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। सुनने में हमारी मदद करता है, कबूल करने में हमारी मदद करता है, फिर सारी जिंदगी उस कलाम के मुताबिक चलने में हमारी मदद करता है। कब तक करता है? कब तक करता है? जब तक यीशु दोबारा ना आ जाए। जब तक यीशु दोबारा ना आ जाए, रूह कुदस हमारी मदद करता है, करता था और करता है। जब रसूल ने देखा कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इनमें मोहब्बत नहीं रही। जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे को नीचा समझेंगे कि मेरी व्हाइट कॉलर है और दूसरे की जो है वो ब्लैक कॉलर है, यानी कि मैं ठीक हूँ और दूसरा बिल्कुल खराब है, गंदा, वो नीच है, तो फिर क्या पढ़ेंगे हम में? तफरके। क्या पढ़ेंगे जी? तफरके पढ़ेंगे, जुदाइयाँ पढ़ेगी, बिदअतें पढ़ेगी, ठंडे फसाद होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। और दूसरे ने कहा कि इनका हल मैं निकाल कर देता हूँ, इनका हल। उन्होंने कहा कि रूह कुदस की नेमतों के बारे में ना लड़ो, रूह कुदस की नेमतों के बारे में आपस में ना तफरके डालो, रूह कुदस की नेमतों में आपस में ना झगड़ो, बल्कि एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। वो तरीका कौन सा है? जब पहला करंथियों उसका 13वां बाब पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंड का पीतल और झंझलाती छाछ। रूह कुदस का पता नेमतों से नहीं मिलता। रूह कुदस का पता रूह कुदस की नेमतों से नहीं लगता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? आपस में मोहब्बत। आपस में जब पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? सारी चीजें जाती रहेगी, सारी चीजें जाती रहेगी। अगर नबूवत हो तो वो भी जा सकती है। अगर क्या है जी? अगर इल्म है तो वो भी जा सकता है, मिट सकता है। अगर जुबानें हैं तो वो भी जाती रहेंगी। लेकिन कायम क्या है? कौन सी चीज रहेगी? कायम कौन सी चीज रहेगी? कौन सी चीज कायम रहेगी? मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? दुनिया मोहब्बत है जी? दुनिया मोहब्बत कायम रहेगी भी नहीं। मोहब्बत क्या है?
खुदा यूहन्ना रसूल का इंजील यानी कि पहला बात उसका चौथा बात पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? खुदा क्या है? मोहब्बत। सब कुछ जानता रहेगा। रूह कुदस की नेम से भी बाइबल के मुताबिक करंथियों 13वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक जाती रहेगी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अफसर कौन सी चीज होगी? कौन सी? मोहब्बत। कौन सी? और भाई हमारी मोहब्बत से रूह कुदस का पता चलता है। हालेलुया। किस बंदे के अंदर रूह कुदस काम करता है कि नहीं? अगर मेरे और आपके अंदर मोहब्बत काम करती है तो यकीनन हमारे अंदर रूह कुदस काम कर रहा है। रूह कुदस हमारी मदद कर रहा है ताकि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, हम खुदा से मोहब्बत रखें। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी मैं चाहता हूँ कि साहब जरा पढ़ी दीजिएगा, जरा इसको पढ़ी दीजिएगा, 8वीं आयत को जरा पढ़ी दीजिएगा और आखिर तक पढ़ दीजिएगा। इस बात के आखिरी आयत तक जरा पढ़ दीजिएगा। क्या लिखा है? हाँ जी। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। सुनिएगा, मोहब्बत को ज़वाल ये क्यों प्रोसेस ने लिखा? क्योंकि उनमें आपस में क्या हो रहे थे? झगड़े, आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी, एक दूसरे को नीच समझा जा रहा था। जिसके पास कोई भी नेमत थी वो दूसरे को घटिया नीच समझ रहा था, नीचा दिखा रहा था। प्रोफेसर ने कहा भी ऐसा नहीं, ऐसा हाँ जी। क्या लिखा है? मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। नबूवतें हूँ तो मातूफ हो जाएंगी, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएगी, ज़बानें हूँ तो जाती रहेंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, इल्म हो तो मिट जाएगा। आगे, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है, न क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है, हमारी नबूवत नातमाम, हमारी नबूवत नातमाम है, लेकिन जब कामिल आएगा, लेकिन जब कामिल आएगा नाक़िस जाता रहेगा। नाक़िस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था बच्चों की तरह बोलता तो था, बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तरक कर दी। बचपन की बातें क्या हमें बचपन की बातें तरक करनी है कि नहीं करनी? हमें गुनाहगारी की जिंदगी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? आगे क्या लिखा मुझे साथ? अब हमको आईना में धुंधला सा नजर आता है या दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, फेस टू फेस देखेंगे, जिसमें हम एक दूसरे को देख रहे हैं। आगे, इस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, इस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर जैसे मैं पहचाना गया, जैसे मैं पहचाना गया। गर्ज ईमान, गर्ज सुनिएगा, गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है। ये तीनों क्या है? ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों तो है दायमी। लेकिन इनमें अफजल कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? मोहब्बत। कौन सी? सबसे अफजल कौन सी चीज है? सबसे अफजल चीज कौन सी है? सबसे अफजल कौन सी चीज है? अगर मैं चाहूँ, मैं कहता हूँ कि रूह कुदस मुझ में बहुत काम कर रहा है, मैं बड़ी दुआएं करूँ, बड़ा कलाम सुनाऊँ, बड़ा चर्च जाऊँ, बड़ा काम करूँ लोगों के सामने दिखाने के लिए, अगर मैं मोहब्बत ना रखूँ तो कुछ भी नहीं। रूह कुदस हमें यही सिखाता है। मैंने पहले बताया कि रूह कुदस मेरी और आपकी बुनियाद है। चर्च जो है रूह कुदस पर खड़ा है, रूह कुदस पर काम है और खुदा रूह कुदस है। खुदा रूह कुदस है, खुदा मोहब्बत है, इसलिए रूह कुदस हमें मोहब्बत का दर्स देता है। हालेलुया। एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत सबसे अफजल है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों है तो दायमी, लेकिन तीनों में अफजल कौन सी चीज है? यही खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और रूह कुदस मेरी और आपकी नींव है और हर वक्त हमारी मदद करता है और करता रहेगा। कब तक? जब तक यीशु वापस दोबारा नहीं आता। और कब से हमने रूह कुदस को हासिल किया है? कब से हमने हासिल किया? रूह कुदस को कब से हमने हासिल किया है? बताइएगा। हाँ जी, कब से हमने रूह कुदस को हासिल किया? कब से रूह कुदस हमारी मदद कर रहा है? बताएं, मेरा खुल के बताएं। अभी मैंने 3-4 दफा इस बात को दोहराया है। इसी पहले बात की 13वीं आयत के मुताबिक रूह कुदस कब से हमारी मदद कर रहा है? कब से? हाँ जी,
रूह कुदस हमारी मदद उस वक्त से कर रहा है जब हमने खुदा के कलाम को सुना और कबूल किया। अमल बाद में होता है, पहले कबूल होता है, पहले सुना, कबूल किया, फिर अमल आए। और इस सारे प्रोसीजर में हमारी मदद कौन कर रहा है, हमारी गाइडेंस कौन कर रहा है, हमारा हेल्पर कौन है? सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस। यही पेंटिकोस्ट का मतलब है। और जरूरी नहीं देखा देखी कि उसे फलां नेमत मिली है भावे उन्हें भी किसी को खोई हो, इस तरह से हुआ खोई को छोड़े। अगर मेरे पास जो नेमत है तो दूसरा खुदा से मांगे। किससे मांगे? मेरी कॉपी ना करे। अगर मेरे पास गैर ज़बान की नेमत है तो मुझे भी चाहिए कि मैं किसी को ना सिखाऊं, रूह कुदस से सिखाऊं। बहुत सी रूह कुदस की कॉपी हो रही है, पेंटिकोस्ट की कॉपी हो रही है, याद रखिएगा। एक दूसरे को जुबानें सिखाई जा रही है। आप तेन जुबान सिखाना, आप मेरा 3-4 घंटे दुआ कर देना ना आई था कहीं आ मेरे नाल नाइट प्रेयर का प्रोग्राम रखते रूह कुदस की जुबान आने की आगे तक्के नाल, यानी किस तरह रूह कुदस आपकी मदद उस वक्त से करना शुरू कर देते हैं जब खुदा के कलाम को सुनकर कबूल करते हैं। सुना, कबूल किया, फिर अमल में लाया। रूह कुदस का काम है जो आपने खुदा के कलाम को सुना और कबूल किया। जब आपने कबूल किया तो क्या अपनी कोशिश से किया, अपनी मर्जी से किया, अपनी मेहनत से किया? उसमें भी रूह कुदस ने आपकी मदद की तो आपने खुदा के कलाम को सुना और कबूल किया, और अब रूह कुदस आपकी मदद कर रहा है। जो भी नेमत खुदा का पाक रूह आपको देता है उसके लिए शुक्र करते रहे। हालेलुया। ना एक दूसरे की कॉपी करें, ना एक दूसरे से हसद करें, ना एक दूसरे से जले, और ना ही एक दूसरे से लड़े और झगड़े। जो भी नेमत रूह कुदस से आपको मिल चुकी है उसके लिए खुदा का क्या करते रहे? शुक्र। खुदावंद इस नेमत के लिए तेरा शुक्र है। अगर तूने मुझे गैर ज़बान दी है तेरा शुक्र है। अगर तूने मुझे नबूवत का कलाम दिया तेरा शुक्र है। अगर हिकमत या अलमियत का कलाम दिया खुदावंद तेरा शुक्र है। अगर तर्जमे की नेमत दी है तो खुदावंद तेरा शुक्र है। अगर शिफा या मुआवजा करने की नेमत दिया तो खुदावंद तेरा शुक्र है। ना एक दूसरे से हसद करें, ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, और ना ही जले, और ना एक दूसरे की कॉपी करें। हालेलुया। जैसी भी जो भी जितनी भी नेमतें रूह कुदस ने आपको दे रखी है खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया। और रूह कुदस के वसीला से हमेशा यीशु मसीह की दूसरी आमद तक बढ़ते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से